بہت سارے ٹیچرس بھی ہیں میرے یہاں پہ ماشاءاللہ, اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے ٹیچرس کا کیا ہے. آئی ہوپ کہ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ٹیچرس کا کیا ہے, آئی ہوپ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹریننگس کا برڈن دے کر ہم نے ٹیچر کو بہت زیادہ برڈنائز کر دیا ہے؟ 8ویں جماعت میں بیٹھا ہوا بچہ سندھ صوبے میں چند ڈسٹرکٹس میں 3ری جماعت کی کتاب پڑھ نہیں سکتا. یہ کیسے ہوا؟ How did this happen? وہ 8ویں جماعت کا نااہل بچہ میٹرک بھی پاس کر لے, BA بھی کر لے اور ٹیچر بھی بن جائے, اور اب آپ اسے کہیں کہ وہ پڑھ جو تجھے میٹرک میں پڑھنا چاہیے تھا, آپ اسے برڈن کہیں, لائبریری کہیں, یا بھائیوں کا مکافات عمل کہیں, اصل مسئلہ یہ this is not the book. Thing is, I'm normally teaching children in BA sometimes to think which they should have known in metric but did not. Now, how did this happen? تو یہ میرے قوم کے ساتھ بہت بڑا آدمی ہے, اور آپ کا ایک سوال بھی مستقل چل رہا ہے. Let us be very, very honest and clear. As a nation, we don't care about education. As a nation, افراد کو فکر ہے تعلیم کی, ماں باپ کو فکر اپنے بچوں کی تعلیم کی, لیکن بحثیت قوم کے, میرے قوم کے معمار کو, میرے پالیسی میکرز کو, حکومت میں بیٹھے ہوئے احباب کو خاص فکر نہیں ہے تعلیم کی. سر بالکل آپ کی بات سر آنکھوں پر. بعض چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایکچولی دیکھیں, میرا جو برڈن کہنے کی بات تھی کہ ہم اگر بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیچر BA کی ڈگری لینے کے بعد بھی ہم اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک وہ BA کے اندر بھی میرا تعلق ہے BA کے کریکولم سے. میرے بدن میں 111 BA کالجز ہیں, ٹھیک ہے. اگر ان کے اندر میں تعلیم ہوئی ہوتی تو میں نے کچھ سنا. یہ تو my problem is کہ ہم لوگوں نے ایک ٹائم وارڈ کے اندر میں پھنسے ہیں, and we should know the world changed in 1995. in 90 خاص ڈیٹ ہے اور یہ 1995 سے قبل کی کائنات یا دنیا 1995 کی دنیا کے بعد ہے, فرق ہے, نان کمپیریبل ہے. یعنی ہر وہ چیز جو 1995 کے بعد کی ہے وہ نہیں ہے جو 1995 سے پہلے کی ہے. پینڈیمک کے تو پینڈیمک نے مزید جھاڑو لگا دیا خرافات کے, اور ہمیں اور آزادی دے دی کچھ چیزوں کو. افسوس یہ ہے کہ ہم ابھی بھی دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں پینڈیمک کے قبل کی دنیا میں, اور اس سے بھی ورڈ 1995 سے قبل کی دنیا. بالکل دیکھیں, یہی ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم لوگوں کا جو بھی چل رہا ہے سلسلہ, اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو لے کے آگے چل رہا ہے. ایج کا بچہ ہوتا ہے کلاس 3 کی کتاب نہیں پڑھ سکتا, اینڈ دس از واٹ وی آر ایکچولی فیسنگ because we are running a BA college program doing a free service teaching. اس میں immediately ہمارے پاس وہ students آتے ہیں جو 12th grade پاس ہو گئے and they are prospective teachers. And we are facing this issue continuously almost all the subject areas, चाहे वो maths हो, science हो, social studies हो, या फिर अंग्रेजी या उर्दू हो. یہ ہمارے جو student teachers ہیں, جو prospective teachers ہیں, that we actually aspire کہ 4 سال بعد گورنمنٹ اسکول میں جا کے فل ٹائم ٹیچر بنیں گے, لیکن ان کے جو لرننگ گیپس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کلاس 10 کا کنٹینٹ اگر آپ ان سے پوچھیں تو انہوں نے 12 سال کچھ نہیں پڑھا. بالکل 12 سال کچھ نہیں پڑھا, اور 8ویں جماعت میں بھی آ کے وہ نہیں پڑھ پا رہا. تو مطلب اس وقت تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورت حال ہوتی جا رہی ہے, اور اس وقت ہماری گفتگو کی بھی صورت حال تھوڑا خطرناک کو لینے کی طرف جا رہی ہے. تو چلیے ہم اس خطرناک صورت حال کو تھوڑا سا سنبھالتے ہیں, تھوڑا سا حوصلہ کرتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں. تو سوال میرا
सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, इदारे तालीम आगे की तरफ से आप आई हैं, तो मतलब हमारी दरख्वास्त में थैंक यू सो मच। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि टीचर्स एजुकेशन, एजुकेट द एजुकेटर्स, सब सुन रहे हैं, सब चल रहा है, हर तरफ हो रहा है, कितना टाइम लगेगा हमें? एक रफ आइडिया, माशाल्लाह। देखिए, आपसे सवाल करने का मेरा डायरेक्ट मकसद ये है कि माशाल्लाह यहाँ पे हम जो सब बैठे हैं, हम सभी टीचर्स ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल करने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों की तरफ से जो एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स नजर आ रही हैं और उन एफर्ट्स को बहुत रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सर अब्बास हुसैन मेरे उस्ताद, मतलब मैंने इनसे बहुत ट्रेनिंग की है, ये मेरे लिए बहुत मोहब्बत काबिल एहतराम है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सवाल है खुदा खास्ता, वो किसी से पर्टिकुलर मसले की उसमें नहीं है, मैं सबसे यही सवाल करने वाली हूँ। लेकिन इब्तिदा में करूँगी इदारे तालीम हो आगे से। अच्छा, वैसे जैसे आपने जैसे कहा कि सर अब्बास हुसैन आपके जो उस्ताद हैं, तो आज से 10 साल पहले इस्लामाबाद में इनकी ट्रेनिंग मैंने भी अटेंड की है। मेरा कहना है यहाँ पे मौजूद बहुत सारे टीचर्स के उस्ताद हैं। तो हम सबके उस्ताद हैं। आई थिंक इट्स टू सी ए पॉजिटिवली कि अगर 10 साल पहले उन्होंने हमें ट्रेन किया है और अब हम आके ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो कुछ तो बेहतरी आई है, कुछ तो चेंज आया है। बिकॉज हमने लर्न किया है कि टीचर्स को कंटेंट नॉलेज, पेडागोजी, ये सब चीज़ें पढ़ानी है। अब और कितना टाइम लगेगा वो शायद हम में से कोई इसका जवाब ना दे सके इस चीज़ का, क्योंकि वी आर प्रिविलेज्ड। आई स्टिल थिंक कि हम जो यहाँ बैठे हैं वी आर प्रिविलेज्ड, लेकिन जिन टीचर्स के साथ मैं काम करती हूँ कम्युनिटी स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में, इंटीरियर सेल में, उनकी रिसोर्सेज बहुत कम है, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फर्स्ट उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, वो बेयर मिनिमम वेज जितने होना चाहिए शायद उतनी सैलरी मिलती है, उससे कम मिलती है। तो जो उनके मसाइल हैं वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे, वी कैन नॉट इम्प्रूव द एजुकेशन। एमरजेंसीज कितनी आई हैं? एक्चुअली थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी इसी बात से हमारा अपना पैनल डिस्कशन का रास्ता हमवार हो रहा है कि ये जो भी आपने बातें की, मैंने खुद ही सवाल किया था कि why we are here, why we are merging two things, why these are two dimensions, why we are actually connecting them। तो ये हमारा रास्ता उसी तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे। मगर मेरा जो सवाल था आपसे, वो सवाल यही था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ये नो वन नोज एक्चुअली हाउ लॉन्ग इट विल टेक। मगर मेरा ऑडियंस से सवाल है, आप लोगों की विलिंगनेस कितनी है? आर यू पीपल रेडी टू लर्न? Are you people ready to come in front as a moderator, as a teacher, as a leader? I must say. अब जाना चाहती हूँ। माशाल्लाह, आवाज़ जाना चाहती हूँ। माशाल्लाह, आप लोग तैयार हैं अगर आगे आने के लिए, तो हम सब भी यहाँ तैयार हैं आपको आगे ले जाने के लिए। थैंक यू। छोटी सी बात साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं, शायद उसके बाद में सर अब्बास से कहूँगी कि वो इस गुफ्तगू का खुलासा करें। बिकॉज इनका यहाँ आना ही इस चीज की गवाही है कि आगे जाना चाहते हैं। बट जो आपने सवाल पूछा था कि हम कहाँ हैं, तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूँ कि जब हम एजुकेशन के लिए कोई भी डिबेट करते हैं तो हमारे पास 10% का रेशियो होता है। हमारे पास 200 लोग रजिस्टर करते हैं और 200 में से 20 आते हैं। लेकिन अगर एक कॉन्सर्ट होता है तो उसमें 1,500 बड़ी दुखती रंग आप छेड़ने जा रही हैं, ना छेड़िए प्लीज। ये बड़ी दुखती रंग है, इस पे तो इंशाल्लाह कभी बैठेंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बात वही है कि माशाल्लाह जो लोग यहाँ आए हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जो नहीं आ सके ट्रैफिक की वजह से वो भी काबिल एहतराम है, और जो नहीं आ सके, एक लफ्ज़ बोलूँगी माजूर के साथ, और जो नहीं आ सके इसलिए कि फ्री है, रजिस्ट्रेशन करा ली, चलो छोड़ो कौन जाएगा, तो वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मगर मैं ऐसे ही इवेंट करूँगी, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। जो बर्डन आता है आए, एक ना एक दिन तो ये बहुत जरूर करेगा इंशाल्लाह।
अब्बास मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप इस गुफ्तगू का खुलासा कीजिए और मुझे मेरी ऑडियंस को ये बताना है कि कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी जो बहुत ज़रूरी है एक उस्ताद के लिए, जो बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, एक पेरेंट के लिए, जिसकी मदद से हम क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं और जिस सफर हमारा थोड़ा फास्ट ट्रैक हो सकता है। 5 पॉइंट प्लान, 5 अल्फाज जो इस वक्त क्या ये कहते हैं रिवायतें जो मेरी क्लासरूम में स्कूल्स में राइट हैं, जो मैं चाहूँगा कि अगर हम बदल दें तो क्वालिटी की तरफ कदम बढ़े। ये बड़ी कीमती बात है, अगर आप लोग बहुत चीज़ें तो प्लीज कंपटीशन का माहौल है हर क्लास में, प्लीज इसे कोऑपरेशन में बदल दें। अब ये एक जुमले के पीछे बहुत और है, अभी तफसील में नहीं, सिंगल पॉइंट्स मुझसे ले लें जल्दी से। कंपटीशन के माहौल को बदल दें, कोऑपरेशन के माहौल को राइज करें। एक उस्ताद पर तवज्जो के बजाय असातिज़ा की टीम को आगे लाएं। ये प्रिंसिपल का काम नहीं होना चाहिए कि वो इस बात पे नाज करे कि मेरे पास मेरे स्कूल में फला साइंस की मिस कुलसूम बहुत अच्छी हैं, मैथ्स की मिस फातिमा बहुत अच्छी हैं, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। आप ये नहीं कि वो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। बात ये है कि मिस कुलसूम की अच्छाई मिस हिना तक कैसे पहुंचेगी, चीज कोई ऐसा माहौल हो स्टाफ रूम की मीटिंग्स का जिसमें कि बेहतर उस्ताद की स्ट्रेटजीज नए आने वाले उस्ताद तक पहुंचने का मुनज़्ज़म तरीका, ये पॉइंट है नंबर 2। नंबर 3, प्लीज एक क्लासरूम में तदरीस की बेहतरी की बात न करें, पूरे स्कूल के माहौल को तब्दील करने की बात, यानी पूरे स्कूल की दरो दीवार पर वो चीजें हों जिसमें कि वेलकमिंग का, आप हमारे मेहमान हैं, वालिदैन को हर विजिटर को ये महसूस हो कि ये एक हैपनिंग प्लेस है, ये एक जिला और यानी बच्चों के काम से आविज़ा जगह है। नंबर 4, इम्तिहानात पे जोर हटाएं और तदरीस पे जोर दें। ये थी चौथी बात। मेरे वतन में मेरी क्लासरूम से बहुत इम्तिहानात हो रहे, खुदारा मंथली टेस्ट, टर्म टेस्ट, फिर मिड टर्म टेस्ट, फिर फाइनल। एक्चुअली इन द रियल वर्ल्ड हम जानते हैं किसी भी इम्तिहान से मैंने कोई काम की चीज़ नहीं सीखी सिवाय ये कि इम्तिहान से निपटना सीखा। So we can turn that, measure what we value, not value what we measure. जो इसका लुभाव है वो ये कि उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें जिसकी के माशरे में कदर है, न कि उन चीज़ों की कदर करें जो कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर आखिर में। और मैं समझता हूँ कि तमाम टीचर्स लेसन प्लान एक बहुत बड़ी रियलिटी है, उसको लेसन प्लान में तब्दील कर दें। लेसन प्लान वो है जो मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेसन प्लान ये है कि मैं पहले बच्चों से सुनूंगा कि उन्हें ऑलरेडी क्या आता है, इंक्लूसिव और डाइवर्सिटी के ज़हन में रखते हुए बच्चों की वो खिदमत कर सकूं जिस जगह की वो हैं, न कि जिस जगह मैं। ये मेरी 5 गुजारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। आपने जिस तरीके से इसका खुलासा किया ये हम सबके लिए यकीनन बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी बात पे इस गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगी, इस पैनल डिस्कशन को, और शालिक आपसे दरख्वास्त है कि आपने जाने ज्वाइन अस। और एक छोटी सी बात, अच्छा ओके सर, हाँ सर, ऑडियंस की तरफ से सवाल अगर है तो हम 2 या 3 सवाल लेंगे, प्लीज़ आप पूछिए, और जिनसे आपने पूछना है प्लीज़ पर्टिकुलर नाम ले लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपकी बात एक दुख है, एक ऐसा दर्द है मेरा जिसने मुझे काफ़ी अच्छे से परेशान किया है। पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ,
मोहम्मद हाजमीन, आई एम शाजिया बिरोई और पिछले 35 ईयर से मेरी एजुकेशन की जर्नी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ। और मैं वो हूँ जिसका बच्चा 8th क्लास में तीसरी क्लास का पढ़ना नहीं जाना। ये अफसोस की बात है। आप लोग कह रहे हैं ये अफसोस की बात है, मगर ये लम्हा क्लियर भी है। क्यों? वाई? उस वाई का मैं जवाब दूं कि यहाँ पर जो ऑडियंस मौजूद नहीं है वो आपके इतने जो प्रीशियस वर्ड है, इतना जो इनोवेटिव आज चेंज कर दिया मेरा भी माइंड उसने, इतने बुढ़ापे में इस एज में आकर। तो आप बताएं कि वो जो नहीं आए हैं वो ये सीख सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं जो बात आज आपने बताई? नहीं समझ सकते। तो मेरा टीचर जब स्कूल में मौजूद ही नहीं होगा, उसकी इलेक्शन की ड्यूटी है, उसकी सेंसस की ड्यूटी है, उसकी पोलियो की ड्यूटी है, वो इतना बाहर रहेगा तो वो कैसे पढ़ाएगा उस बच्चे को? थैंक यू सो मच। आपका सवाल थोड़ा सा जरा इसको जल्दी से सवाल पूछ लें, सवाल मुकम्मल कर लें ताकि सर जवाब दे सकें प्लीज। आई थिंक सर आप मेरी बात समझ गए। मेरा सवाल मेरे ख्याल में आप समझ गए। मेरा सवाल यही है कि मेरे टीचर को स्कूल में क्यों नहीं छोड़ा जाता? बर्डन उसको ट्रेनिंग्स नहीं करती, बल्कि ट्रेनिंग्स उसको इजी करती है, उसके माइंड को फ्री करती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, उसमें पोटेंशियल को बढ़ाती है। If I can respond, तमाम हाज़रीन जानते हैं यह है सिस्टम्स थिंकिंग। मैक्रो लेवल के प्रॉब्लम्स माइक्रो लेवल के ऊपर ठीक नहीं हो सकते। यानी मैं एक मिसाल दे दूं जिससे और ज्यादा अंदाज में इजीली बात समझ आ जाए। अगर किसी जगह किसी मुल्क में पुलिस ठीक न हो और हर सिटीजन अपनी हिफाजत के लिए असलहा ले ले, इससे माशरे में बर्बरियत कम नहीं होगी, ज्यादा। क्योंकि हर शहरी का असलहा लेना पुलिस के ठीक होने का मुतबादिल अमल नहीं है। वो ठीक करना जरूरी है, वो एक अलग लेवल है। और हर शहरी का असलहा रख के मुल्क में बर्बरियत कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। तो जो आपने बात बताई वो सिस्टमिक प्रॉब्लम है और उसका हल भी सिस्टम लेवल पर है, इंफरादी लेवल पे नहीं। तो इंशाल्लाह सिस्टम तो हमसे ही बनता है और हम ही है सिस्टम बनाने वाले और हम ही है सिस्टम बिगाड़ने वाले। तो इंशाल्लाह इसमें मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया कि हम इंशाल्लाह आएंगे एक और बेहतरीन चीज़ के साथ आपके सामने और उसमें भी खुल के बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक सवाल मैं और लूँगी और फिर मैं उसके बाद अपने चीफ गेस्ट अपने गेस्ट ऑफ ऑनर की तरफ मूव कर दूँगी। जॉसलिन प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफिया खान है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है। वही साहब तो आपने जो Can I sit because this is a very almost program, so that's why I'm standing up. Sir, मेरा सवाल आपसे ये है कि the number of points that you कुछ तो लिख लो बैक साइड करके। excellent after my own heart. इसलिए ये घूमना नहीं चाहिए। Surmise the whole thing. What you have said in a nutshell is that this is a change. This is a challenge that you have thrown to me, to the faculty or to the teachers, to each one of us, right? Now, are you afraid? The first question that was logged by Ms. Shazia, the question that was logged by her was sort of related. Is the disparity that is coming in because the teachers are afraid to take in that challenge? Are they afraid to change themselves? Because whatever you said tells me that no, we are afraid to change themselves. And this is what I see is the problem with education.
that the change is what frightens. But I think we need to step up. Yeah. Show us, teach us a way, give us a path where we can find it easy to change. Thank you. Thank you. I fully agree. My teacher and mentor once said to me a very powerful thing about change and resistance to change. अगर तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हारे ज़मीर को मालूम है कि करना चाहिए, तो तुम पर वो शख्स मुसल्लत किया जाएगा जो तुमसे वो करवाएगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम नहीं चेंज होंगे, क्योंकि हमारा ज़मीर कहता है कि हमें चेंज, और अगर हम समझे चल रहा है ना, तो प्लीज रिमेंबर, हम पर वो जबर किया जाएगा, वो कोड़ा मारा जाएगा तब्दीली के लिए, और हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। वी आर देयर नाउ, उसको क्लाइमेट चेंज कहिए, उसको लाहौर स्मॉग कहिए, उसको दीगर प्रॉब्लम्स कहिए, दे आर नॉट जस्ट लाइक दैट, दे आर साइंस दैट वी आर guilty and culpable ourselves of a whole lot of errors, and they are coming to us. So it's a global picture. Thank you so much, sir. Thank you so much for your question. यहाँ पर मैं अपने पैनल डिस्कशन को थोड़ा सा वाइडर की तरफ लेके जाना चाहूँगी। एक छोटी सी बात, अलावा मोहम्मद इकबाल साहब को हम सब जानते हैं, शायरी मशरिक, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुमने, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है टूटा हुआ था, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताज सर डाला। तो हमारे असातिज़ा कराम उसी कौम से हैं जिस कौम का अभी अल्लामा इकबाल साहब ने जिक्र किया, और हमारे असातिज़ा कराम ने वही कौम आगे बनानी है जिसका ख्वाब देखा जाता है, जिस कौम से एक्चुअली दुनिया डरती थी। अब तो हम वो नहीं है, लेकिन हमने वो बनना है, और वो बनने में बनाने में आप लोगों ने हम सबका साथ देना है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं अपने पैनल डिस्कशन को खत्म करूंगी, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग यहीं तशरीफ रखिए। हमारे पास हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद हैं, हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं, वो हमारे इस पैनल डिस्कशन को एंड करेंगे और हमारे पैनलिस्ट को शील्ड्स प्रोवाइड करेंगे। Thank you so much, Nina. I think this was a wonderful panel discussion. So a huge round of applause for all the panelists and for moderating such an amazing panel discussion. हमने बहुत सीखा और हमें ये I think एक हम सबके अंदर एक message आ गया कि what we have to do in way forward, inshallah. So I'd now like to invite our chief guest who is here with us today. Thank you so much for being here with us. मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आके हमारे पैनल्स को सर्विलेंस प्रेजेंट करेंगे। We have today with us Dilawar Mangi Sahab, and he is the Director General Planning and Development, School Education and Literacy Department, Government of Sindh. He has been responsible for overseeing the development sector within the School Education Department across Sindh. Coordinated efforts with international donor organizations and agencies including UNICEF, GITA, World Bank, Asian Development Bank and USAID. Work closely with federal government bodies and associated departments to align and implement educational development initiatives across Pakistan. His dedication to promoting education and his significant contributions have played a pivotal role in not only advancing educational opportunities across Sindh but across Pakistan. We are very, very honored and pleased to have him here today with us as our chief guest. Please give a big round of applause for Mr. Dilawar Mangi Sahab.
से अगर आपसे दरख्वास्त है